اچھا جی، آپ اس کی پریکٹس اور مزید آپ لوگ اپنی گروپ کلاس میں بھی کیجیے گا. واپس آتے ہیں. دیکھیں ہم نے پڑھا کہ جو حروف جن میں تفخیم ہوتی ہے، جو صفت ہے وہ اس کو موٹا اور بھاری کر کے ادا کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، اور جن حروف میں یہ تفخیم کی صفت پائی جاتی ہے وہ مفخم حروف کہلاتے ہیں. پھر ترقیق پڑھا کہ ترقیق بھی ایک صفت ہے جو حروف کو باریک ادا کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، اور جن حروف میں یہ ترقیق کی صفت پائی جاتی ہے ان کو حرف مرقق یا مرقق حروف کہتے ہیں. حروف مستعلیہ میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے، خواہ متحرک ہوں یا ساکن. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ صفت ان حروف کے اندر ہمیشہ رہے گی. یعنی کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیر کے ساتھ ہے تو شاید یہ باریک پڑا جائے گا. یہ اس کی لازمی اور مستقل صفت ہوگی، لیکن ان کی حرکت یا ماقبل کے حرکت کے اعتبار سے تفخیم کی ڈگریز میں فرق آ جائے گا. یعنی اس کی گریڈز میں کچھ کمی آ جائے گی. جیسے ہم نے حروف قلقلہ کے مراتب پڑھے تھے نا، اسی طرح حروف مستعلیہ کے بھی مراتب ہیں. اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے جو مراتب دیے ہوئے کہ مفتوح کے بعد الف ہو. پلیز اپنے مائک میوٹ کر لیجئے. مفتوح کے بعد جو ہے وہ الف ہوگا. یعنی کہ مفتوح کے بعد الف کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ جو حروف مدہ ہے، یعنی کہ الف مدہ، اس سے پہلے جو حرف ہے وہ حروف مستعلیہ ہونا چاہیے. یعنی مفتوح کا معنی فتحہ سے ہے، یعنی کہ جس کے اوپر فتحہ ہوتا ہے وہ حرف مفتوح کہلاتا ہے. یعنی کہ زبر کے ساتھ الف ہوگا تو سب سے زیادہ ڈگری آف جو مستعلیہ حروف ہے وہ ہوگا، یعنی سب سے زیادہ فرسٹ گریڈ کا اس میں استعلاء موجود ہوگا. جیسے کہ لتا، لتا، طائعین یا طائفین. اس میں الف بھی ہے نا، اس میں بھی میں الف بھی ہے اور زبر بھی ساتھ ہے. دوسری ڈگری پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی زبر و الف نہیں ہو، جیسے کہ غین زبر غو ہے یہاں پہ، غفور الرحیم. مستعلیہ دونوں ہیں، بس اس میں زیادہ ڈگری کا ہوگا اور اس میں تھوڑا کم، جیسے ہم نے حروف قلقلہ پڑھے تھے. اسی طرح پھر آگے تھرڈ ڈگری پر ضمہ آ جاتا ہے، یعنی کہ پیش. مضموم کا معنی ہے یعنی جس حرف پہ ضمہ ہو وہ مضموم کہلاتا ہے. تو ضُرِبَت اس کی ڈگری اس سے کم ہو گئی. اور پھر جو مکسور ہو، مکسور کا معنی کیا ہوا؟ جو یعنی کسرہ کے ساتھ ہو، یعنی زیر کے ساتھ ہو. جیسے کہ یہاں پر خوا زیر خی ہے، ختامہ مسک، ختامہ مسک. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس پوری سچویشن میں انہوں نے ساکن حروف کو الگ باہر نکال کر یہ سیم ہی مطلب ڈگریز ہے. انہوں نے کیا کیا کہ حروف ساکنہ کو انہوں نے کہا کہ اگر حروف ساکنہ جو ہے نا اس کے پہلے اگر زبر والا حرف ہوگا تو حروف ساکنہ کی جو تفخیم ہوگی، یعنی ساکن والا جو حرف ہے اس کی تفخیم سب سے زیادہ ہوگی باقی ساکن حروف کے حساب سے، باقی ساکن کے حساب سے. جیسے یہاں پر حس کا صاد جو ہے اس کی تفخیم یہ اس والے صاد یعنی مس بحینہ والے صاد سے زیادہ ہوگی. پھر ساکن اگر اس کے پیچھے پیش ہے تو پھر آپ اس کی ڈگری سیکنڈ نمبر پہ رکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر ساکن کے پیچھے زیر ہے جیسے بیض اور سینینا تو یہ زیادہ، یہ اس کے آخر میں رکھنا ہے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ کے حساب سے ہے. یہ پوری ڈگری، یہ پورا ایک ہی چارٹ ہے. اس میں انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو اوپر جو زبر کے ساتھ الف بھی ہوگا سب سے زیادہ اس کی ڈگری ہوگی، پھر زبر کی ہوگی، پھر پیش کی ہوگی، پھر زیر کی ہوگی. اور پھر انہوں نے ساکن کو الگ نکال کے سیم وہی ڈگریز کو آگے انہوں نے رکھ دیا کہ یہ جو 2 3 4 ہے نا ساکن کے ساتھ ملا دیا. 2 پہ کیا تھا؟ زبر، تو انہوں نے کہا ساکن سے پہلے زبر. 3 پہ کیا تھا؟ پیش، تو انہوں نے کہا ساکن سے پہلے پیش. 4 پہ کیا تھا؟ مکسور، تو انہوں نے کہا کہ ساکن سے پہلے زیر. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یاد بھی ہو گئی ہے؟ جی میں پوچھ لوں؟ جی پہلے مجھے بتائیں آپ لوگ کہ تفخیم کیا چیز ہوتی ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. کون بتائے؟ موٹا پڑھنا، پور پڑھنا. اس کو موٹا پڑھنا اور پور پڑھنا. میں جیسے پوچھوں گی موٹی آواز کا نام. میں پوچھوں گی جس سے وہ بتائے گا. ساجدہ تقدیس آپ بتائیے کہ تفخیم کیا چیز ہے؟ صفت ہے؟ کیا ہے؟ صفت ہے، حرف ہے؟
ٹیچر تفخیم جو ہے وہ ایک خاصیت ہے جس میں جس حروف میں یہ خاصیت ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے وقت منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے اسے. یہ صفت ہے, خاصیت نہیں کہیں گے, صفت کہیں گے, ٹھیک ہے, صفت ہے. صفت ہے, ٹھیک ہے, شاباش. جو حرف, میرا سوال غور سے سنیے گا, میں کسی کو بھی بول سکتی ہوں مائک انمیوٹ کرنے کو, سب لوگ اپنے اپنے مائک پہ ہاتھ رکھیے, میں کسی کو بھی بول سکتی ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جن حروف میں اپنے پہلے سے میوٹ نہیں کر کے انمیوٹ نہیں کر کے رکھنا, میں سب کے آف کر دیا. ہاں جی, جن حروف میں, رابعہ ثانی اپنا مائک میوٹ رکھیے ابھی. جن حروف میں تفخیم کی صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیں گی منزہ بتائیں گی. منزہ وہ حروف جن پہ تفخیم کی صفت ہوتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ منزہ کا شاید انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا. ندا ذیشان آپ بتائیے. استعلا ہوتا ہے. جن حروف میں تفخیم کی صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مفخم. جی مفخم کہتے ہیں. کون مفخم حروف. بتایا یہ میرے خیال میں ندا. ٹھیک ہے, نورین نے بتایا. نورین آپ کے مارکس کٹیں گے, آپ نا خود سے بولا ہے آپ کا نام. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اب جو وہ صفت جو کہ حرف کو منہ بھر کے ادا نہیں ہونے دیتی وہ صفت کیا کہلاتی ہے؟ یہ بتائیں گی مجھے فاطمہ ندیم. یہ زیبی ندیم ہے یقیناً. مرقق. اسکرین شاٹ لے لیجیے گا, کوئی مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیں. جی مرکب تو حرف ہوتا ہے نا, صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت کیا ہے؟ ترقیق, باریک پڑھنا. جی ترکیب کہلاتا ہے. اور وہ حرف کیا کہلائے گا؟ جی عطیہ. حروف مرقق. شاباش. کیا حروف مستعلیہ جو ہے وہ مستقل اور ہمیشہ کی صفت ہے یا کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی؟ نہیں, اس میں 3 کیٹیگریز میں, مطلب انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرا. نہیں. نبیہہ آپ بتائیے, نبیہہ آپ بتائیے, مستعلیہ حروف کی جو تفخیم ہے وہ کیسی, کس قسم کی تفخیم ہوتی ہے؟ مستقل ہوتی ہے یا کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی؟ جی نبیہہ خان. جی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. بس میں بتاؤں؟ نہیں, میں جس سے پوچھوں گی وہ بتائے. نبیہہ شفیق آپ بتائیے. ہمیشہ ہوتی ہے مگر مراتب میں چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شاباش, بارک اللہ فیک. ہمیشہ کی صفت ہوتی ہے, مرتبے کے ساتھ چینج ہوتا ہے. جی سارا بیٹا سب سے پہلا والا مرتبہ بتائیے. سارا فاطمہ. سارا فاطمہ. اٹینٹیو ہی نہیں ہے آپ ساتھ. سارا اچھا جی, وہ بتا دے. سمیرہ آپ بتائیے, مراتب بتائیے, شروع کے 2-3 بتا دیجیے. ہلو, مراتب مطلب جو ہے پہلا کون سا زیادہ ہاں جی, موٹا پڑا جائے گا؟ ہاں جی 1 2 3 لکھے ہوئے ہیں نا سامنے, اس کو دیکھ کے بتا جی. دیں. میں بتاؤں اگر زبر سے پہلے ساکن سے پہلے زبر ہے تو ساکن نہیں, پہلے یہ تو ہم میں بتاؤں. پہلے متحرک کے بتائیں. متحرک کے بتائیں. اگر جو ہے الف مد ہوگا تو وہ سب سے زیادہ موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے بس, ٹھیک ہے جی. کون کہہ رہا ہے؟ میں بتاؤں. میم میں بتاؤں؟ میں بولی تھی. آپ بتائیے. جی ادرا بول رہی تھی نا, میں بتاؤں کون کہہ رہا تھا؟ جی 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 میم, یہ ہے کہ مفتوح حرف کے بعد الف ہو, یہ پہلا مرتبہ ہوتا ہے, جیسے قالتا. اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ مفتوح حرف کے بعد الف نہ ہو, جیسے غفور.
शाबाश, बारकल्लाहु फीक। जी, अब आप बताएंगी रोशन आरा आप बताएंगी थर्ड वाला मर्तबा। नहीं मिस, मेरी समझ नहीं आया अभी। ठीक है, साइमा महबूब आप बताएंगी थर्ड मर्तबा। ठीक है, शाबाश, मजमूम होगा वो। ठीक है, फिर अब लास्ट रह गया है इसी वाले मुतहर्रिक हुरूफ में, लास्ट रह गया है कि कौन बताएंगी? मरियम मुबशिर। मरियम मुबशिर आप बताइए। मकसूर जेर के साथ। शाबाश। जोहर रसूल आप मुझे साकिन हुरूफ के मर्तबा में सबसे पहला मर्तबा बताइए, सबसे ज्यादा तफहीम किस में होगी साकिन वालों में? साकिन के पहले जो है वो जबर वाला हर्फ होगा। ठीक है, शाबाश। उज़मा रियाज आप बताइए सेकंड वाला। जिसमें पेश हो। साकिन से पहले पेश बोलेंगी ना, खाली पेश। साकिन से पहले पेश हो। ठीक है, शाबाश। जी, ज़ैनब नूर आप बताइए। जी मिस, जिसमें साकिन से पहले जेर हो। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। ये सवालात आप लोगों से करने का मकसद ये होता है कि आप लोग जागते रहें, और आप लोगों को, और फिर ये होता है कि जिसका नाम पुकारा जाता है वो तो अटेंटिव होता ही है, बाकी लोग भी अटेंटिव हो जाते हैं कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए, तो वो जल्दी जल्दी इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो पढ़ लेते हैं कम से कम। जी टीचर, जी बताइए, जी बोलिए। सवाल करना है जी टीचर। सवाल, मुतहरिक और साकिन दोनों कंडीशन में हुर्फ मुस्तालिया से पहले अगर जबर होगा तो वो मफ्तू हो जाएगा, और नहीं तो पूर्ण पढ़ा जाएगा। आपका सवाल ही नहीं समझ आया मुझे सवाल ये है कि हुर्फ मुस्तालिया चाहे वो साकिन की सूरत में हो या वो साकिन मुतहरिक की सूरत में हो, तो जबर की सूरत में मफ्तू ही होगा वो। देखिए, मफ्तू क्यों कहते हैं, एक मिनट मेरी बात सुन लें। हमने एक चीज, हम बचपन में जो हम पढ़ते आए हैं ना कि जबर होता है जबर जेर पेश। अरबी जबान में जबर को फतहा और जेर को कसरा और पेश को गम्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फतहा, गम्मा, कसरा। ठीक है, फतहा ऐसे फतहा आता है लिखा हुआ, ये जबर को कहते हैं। गम्मा जो है पेश के साथ, पेश को कहते हैं, वाद मीम है वम्मा। और कसरा जो है वो जेर को कहते हैं अरबी जबान में। ये हो गया कसरा। ठीक है, जब कोई हर्फ फतहा के साथ होगा तो उस हर्फ को मफ्तू कहेंगे, यानी हम कहेंगे कि जबर वाला हर्फ है तो उसको, उस हर्फ को हम मफ्तू कहेंगे, चाहे वो बा जबर बा हो, वो कोई भी हर्फ हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। समझ आ रही है? ये जबर के साथ जो भी हुरूफ होंगे हम कहेंगे ये मफ्तू बा है। बा जो है मफ्तू है, यानी बा जबर के साथ है, फतहा के साथ है। जब दम्मा के साथ कोई, यानी कि पेश के साथ होगा तो उसको हम, ये मैंने क्या लिखा है, एक मिनट, तो उसको हम मजमूम कहेंगे। मीम वाव और मीम, मजमूम, यानी कि वो कोई भी हर्फ हो सकता है, बापेश भी हो सकता है, तापेश भी हो सकता है, वो कोई हुरूफ मुस्तालिया भी हो सकता है, जैसे कि कौफ है, कोई भी हुरूफ हो सकता है वो। ठीक है, वो पेश के साथ जो भी हुरूफ होंगे वो मजमूम कहलाएंगे, और कसरा के साथ जो हुरूफ होंगे उसको हम मकसूर कहेंगे। ठीक है, मकसूर, मीम काफ सीन वाव रे, मकसूर। ठीक है, और वो कोई भी हर्फ हो सकता है, वो स्वाद जेर हो सकता है, वो लाम जेर भी हो सकता है, वो कोई भी हर्फ हो सकता है, मतलब इनमें से कोई भी हर्फ हो सकता है, वो जेर के साथ, जो भी हुरूफ जेर के साथ होंगे उसको मकसूर कहेंगे, जो हुरूफ पेश के साथ होंगे उसे मजमूम कहेंगे,
जो हुरूफ जबर के साथ होंगे उन्हें मफ्तू कहेंगे। ये बात समझ आ गई सूफिया? जी जी बिल्कुल आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अब आ जाते हैं वापस हम अपनी PDF के ऊपर। हमने अब तक एक मर्तबा पढ़ा है, एक हमने मतलब स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा है। एक दूसरे मकतबा फिक्र के मुताबिक, यानी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, दूसरे ग्रुप ऑफ उलमा के मुताबिक उन्होंने तफहीम के कुछ और मर्तबे बयान किए। उन्होंने साकिन वाला मर्तबा ऑलमोस्ट सेम है। ये देखें, पहला वाला हमने वहाँ क्या पढ़ा था, जबर के साथ अलिफ हो, यही हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया, जबर के साथ अलिफ हो। पहला मर्तबा इन्होंने भी यही बोला है कि जबर के साथ अलिफ हो। दूसरा मर्तबा इन्होंने कहा जबर खाली जबर के साथ हो, जैसे फतहा हो यानी। तीसरा इन्होंने कहा पेश हो। ये तीनों सेम है, जैसे हमने पीछे पढ़े तीनों भी हमने यही पढ़ा ना, पहला वाला जबर के साथ अलिफ हो, दूसरा जबर हो, तीसरा पेश हो। जो हमने चौथा यहाँ पे मकसूर पढ़ा ना, इन्होंने चौथे वाले पर साकिन को डाला है। इन्होंने कहा चौथे पे साकिन आएगा, और साकिन जो है उसके पीछे चाहे कोई भी हरकत हो, उससे साकिन की डिग्रीज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या है। और फिर आखिर में उन्होंने उसको जेर के साथ कर दिया कि आखिर में जो कसरा वाला है वो ये हो गया। ठीक है, आपके पता दोनों होने चाहिए, याद आप ये वाला करें। समझ आई? आपको पता दोनों होने चाहिए कि मैं आपको ये दोनों इसलिए पढ़ा रही हूँ कि कहीं आप दूसरी किताबों में ये दूसरा वाला पढ़ें तो आपको लगे कि जो है वो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने आपको दोनों स्कूल ऑफ थॉट बता दिए हैं, याद आपने लेकिन ये सेकंड वाला करना सही है, क्योंकि ये मुझे ज्यादा करीब तरीन लगता है। ठीक है, मिस एक मिनट। जी कौन मिस कह रहे हैं? मिस मैं अस्मा वैस। जी अस्मा बोले। मिस मैं ये कह रही हूँ, जो आप ये बात बता रही हैं कि ऑलमोस्ट ये सब सेम है, लेकिन थर्ड पॉइंट जो है कसरा वाली कौन से की है, तो मिस ये क्या, ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। ये 4-5 जो पॉइंट आपने बताया, ये बात, ये डिग्रीज है ना, मर्तबे, जैसे हमने कलकला के मरातिब पढ़े थे ना, वही हम मर्तबे पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा तफहीम जो है वो किस लेवल पर होगी। जब जबर के साथ अलिफ आएगा, जब तो सबसे ज्यादा डिग्री होगी। और सबसे कम तफहीम कब होगी? जब 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 हरफ मुस्तालिया के ऊपर जेर होता है, तो सबसे कम डिग्री की तफहीम इसके अंदर होगी। लेकिन तफहीम होगी जब हम ख्वाज़ेर ख़ी पढ़ते हैं, तो ख्वाज़ेर ख्वा पढ़ने वाली तफहीम में फर्क है या नहीं? फर्क आता है ना जी। तो यही फर्क वो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा ये वो फर्क इन्होंने डिग्रीज में लेकर आ गए, क्योंकि सबसे ऊपर और सबसे नीचे को तो आप इतना महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायद आप इसके इनमें आपस में इतना करीब करीब फर्क महसूस ना कर पाए, क्योंकि हम बहुत माहिर नहीं है ना। तो जो बहुत माहिर है, जी इनकी मोटाई में फर्क आ जाएगा ना पढ़ने में, हाँ, जब हम हाँ टीचर फिर हम ये वाले याद करें जो आपने दूसरे 5 लिखवाए हैं जी, मतलब बताए हैं, ये वाले याद करें जी। याद आपने ये दूसरे मकतबे वाले करने हैं, दोनों पता दोनों होने चाहिए। याद आपने यानी कि जब आप पढ़ रहे होते हैं और आपने जिंदगी में आपने अप्लाई करना है, तो आपने इस लेवल को अप्लाई करना है। चले पता आपको दोनों होने चाहिए। आगे आ जाते हैं हम। ये देखिए हुरूफ मुस्तालिया जो है वो ये है, ये 7 हुरूफ जो हैं वो हुरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। ऐसे हुरूफ जो अदायगी के वक्त मुंह भर के खूब मोटे अदा हो रहे हैं, और इनको हमने एक मजमुए में कलेक्ट कर लिया है। फ़ा, साद, दाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। इनको हमने यहाँ मिला के लिख दिया, इनको हमने यहाँ मिला के लिख दिया। ये टोटल कितने 7 हुरूफ हैं, और इनको हम इस तरह से हमने हरकतें लगा कर इनको याद करने के लिए हमने हरकतें लगा दी हैं। और हम कैसे पढ़ेंगे इसको? खुस्सा वक्तिन क़िज़। बोले इसको सारे लोग बोले, खुस्सा वक्तिन क़िज़। ये मजमुआ आपने याद रखना है। खुस्सा वक्तिन क़िज़, जैसे ही आपको
حروف مستعلیہ کی بات آئے گی، کوئی کہے گا کہ حروف مستعلیہ، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ مخفف آ جانا چاہیے، خصہ وقت قیل. جیسے کہ حروف قلقلہ کے بارے میں جب ہم بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً وہ 5 حروف آنے چاہیے، قطب جی. تو اب آپ نے جو ہے وہ ان کو یاد رکھنا ہے، خصہ وقت قیل. اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں جو 4 حروف ہیں نا، ان کو ہم نے نکالا ہے، جیسے صاد، ضاد، توئے اور دوئے، سوری تو و. تو ان کو جب ہم نے نکالا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حروف تفخیم میں باقی تمام حروف سے ایک درجہ اوپر ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تفخیم میں بھی کچھ ایک درجہ اوپر ہیں، اور وہ کیوں ہے، وہ وجہ کیا ہے، یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے. صاد، ضاد، توئے، زوئے، تو ضا میں 2 درجہ کی تفخیم پائی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف میں صفت استعلاء تو ہے ہی، ان میں صفت اطباق بھی ہے، جبکہ غین، خا، قاف میں 1 درجے کی تفخیم ہوتی ہے، کیونکہ ان میں صرف صفت استعلاء پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اطباق کیا چیز ہوتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہم نے اس تصویر کی مدد لینی ہے. دیکھیں، جب آپ استعلاء کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اکثر لسان یعنی کہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ تالو کی طرف بلند ہوتا ہے، کیونکہ قاف کا مخرج جو ہے وہ تالو سے چپکا کر ہے، اس وجہ سے یہ تالو سے چپکا ہے، ورنہ ہر حروف جو ہے وہ تالو سے چپکا کے نہیں پڑھا جاتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے خا ہے، خا کے لیے صرف تالو کی طرف بلند ہوگی زبان، یہاں پر چپک نہیں جائے گی. قاف کا مخرج تو ہے ہی نرم تالو، اس لیے یہ چپکا ہوا ہے. اور آپ زبان کی شیپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے کتنی اٹھ گئی ہے. جن حروف میں استفعال ہوتا ہے، جیسے کہ کاف ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے، زبان بس یہاں سے کاف میں کاف سے لگ کر بس یہاں سے سیدھا باہر آ رہی ہے، زبان کا پریشر جو ہے وہ سیدھا، آواز کا پریشر جو ہے وہ سیدھا منہ سے باہر آ رہا ہے. استفعال کی کیفیت کیا ہوتی ہے، استعلاء سے الٹی ہوتی ہے، یعنی استعلاء میں زبان بلند ہوتی ہے پیچھے سے، اور استفعال میں کیا ہوتی ہے. یہ ہم جب صفات پڑھیں گے نا تب آپ کو زیادہ کلیئر سمجھ آئے گا. ابھی میں صرف آپ کو استعلاء سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ استعلاء میں زبان کی جو جڑ ہوتی ہے نا وہ پیچھے سے اٹھتی ہے. جب وہ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، حرف جو ہے وہ موٹا اور منہ بھر کے ادا ہوتا ہے. منہ بھر کے کیوں ادا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ آواز کا پریشر ان ایروز سے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ایروز اوپر کس طرح، کس ڈائریکشن میں اوپر جا رہے ہیں، ایسے ڈائگنل اوپر جا رہے ہیں. آپ کو آواز کا پریشر ایسے فیل ہوگا. کوئی چیز ایسے ٹکرائے گی تو زیادہ بھاری آواز آپ کو سنائی دے گی، اور کوئی چیز کوئی ٹکرا نہیں رہی اور سیدھی سیدھی باہر نکل رہی ہے تو آپ کو آواز بھاری سنائی نہیں دے گی. یہ ترکیق والے حروف ایسے ادا کیے جائیں گے کہ ان میں سے بس ایسے ہی باہر نکل آئے گی آواز. جیسے با، جب آپ پڑھتے ہیں با تو آپ کو تالو پہ کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا، با با، لیکن آپ پڑھتے ہیں خا تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے تالو پہ کچھ نہ کچھ ایسا لگا ہے، کچھ ٹکرایا ہے. محسوس کریں آپ خود ہی پڑھ کے، آپ وہ مت میوٹ نہیں، ان میوٹ نہیں کیجیے گا. خا، دیکھیں آپ کو تالو پہ محسوس ہوا ہے کچھ ٹکرایا ہے. آپ پڑھتے ہیں خا، کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے، ان میوٹ نہیں کریں، مائک میوٹ رکھیں، مائک بند رکھیں، ایسے ہی خود اپنے طور پہ پڑھیں. اور پھر آپ پڑھتے ہیں سو، سو، آواز کچھ نہ کچھ ٹکرا رہی ہے، کچھ پہ زیادہ ٹکرا رہی ہے، کچھ میں کم ٹکرا رہی ہے، لیکن ٹکرا سب میں رہی ہے. تو استفعال والے جو حروف ہیں جیسے با ہے، ما ہے، اور باقی تا ہے، سا ہے، جو بھی اور حروف ہے جو استفعال کے ساتھ ہیں، یعنی خصہ وقت قیس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان میں آواز تالو سے ایسے نہیں ٹکراتی جیسے یوں ٹکرا رہی ہے. ٹھیک ہے، جس میں استعلاء والے حروف میں ٹکراتی ہے. اب آتے ہیں ہم اطباق میں. جی صوفیہ نے ہینڈ ریز کیا ہے، کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ اچھا نیچے کر لیا. پھر ہے ہمارے پاس اطباق. اطباق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی زبان درمیان سے بھی اٹھ جاتی ہے، اور درمیان سے بھی اٹھ کے جب اس طرح سے فلیٹ ہو کے سیدھی اوپر ہو جائے گی تو کیا ہوگا، آواز کا پریشر یوں اوپر جائے گا اور سیدھا اوپر جا کے ٹکرائے گا. جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آواز کا پریشر یوں سیدھا اوپر جاتا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں وہ، جب آپ پڑھتے ہیں سو، جب آپ پڑھتے ہیں وہ، تو سب جگہ سب اس میں آواز کا پریشر سیدھا ڈائریکٹ اوپر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ موٹے اور بھاری سنائی دیتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یعنی کہ اطباق کیفیت ہے کہ جس میں زبان آپ کے تالو کو پوری طرح سے کور کر لیتی ہے لیکن چپکتی نہیں، چپک نہیں جاتی پوری طرح سے، لیکن پوری طرح کور کر لیتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آواز کا آپ جتنا راستہ روکیں گے
वो उतनी भारी सुनाई देती है। आपको पता है ना कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें बेस बढ़ाई जाती है, पिच बढ़ाई जाती है, पिच में आवाज बारीक निकलती है, बेस में आवाज भारी निकलती है। तो ये किस तरह से होता है? ये आवाज का जो वाइब्रेशन है ना, उनका रास्ता तंग या ज्यादा करने की वजह से होता है। ये बात किसी को पता है? नो टीचर। जैसे आप देखते हैं वो जो बांसुरी बजाई जाती है, आपने देखा उसके ऊपर होल्स होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, वो पाइप है जिसके अंदर से हवा सिर्फ वाइब्रेशन गुजर रही है। तो वो जो बांसुरी बजाने वाला होता है वो उस पे फिंगर्स मूव कर रहा होता है। वो जो फिंगर्स मूव करता है वो सिर्फ क्या करता है, वो उसकी आवाज के रास्ते को खोलता और बंद कर रहा होता है, जिसकी वजह से आवाज कभी बारीक सुनाई दे रही होती है, कभी ज्यादा बेस वाली सुनाई दे रही होती है, और ये जब इस बार रिदम बनता है तो वो म्यूजिक बन जाता है। तो यही चीज यहाँ आपके मुंह के साथ भी होता है कि जब आप सीटी बजाते हैं तो आप अपने होठों को पूरी तरह गोल करके आवाज का रास्ता आवाज, आप लोग माइक म्यूट नहीं करते हैं और फिर आपस में बातें करते रहते हैं। तो आवाज जो है वो सीटी जब आप बजाते हैं तो आप क्या करते हैं, आवाज का रास्ता बिल्कुल तंग कर देते हैं, और जब इतना कम हो जाता है रास्ता तो आवाज बिल्कुल बारीक श्रिल साउंड आपको सीटी की सुनाई देती है। तो इसी तरह जब हम कोई भी हर्फ अदा करते हैं तो उनकी आवाजों में फर्क इसी वजह से आता है क्योंकि उसमें हम वाइब्रेशन का रास्ता रोकते, कुछ कम कर देते हैं, कहीं पे रुक जाती है, कहीं पे ज्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से आवाजों यानी हर्फ जो है वो हमने क्या पढ़ा था, हर्फ एक क्या है? हर्फ एक आवाज है बेसिकली। तो इन आवाजों को ही तो हमने मैनेज करना है। ये हर्फ हमने सीखने के लिए हम इन आवाजों को और वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना है उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए, जिस तरह ये हर्फ निकलने चाहिए जो इस लैंग्वेज का खासा है। तो वो सीखने के लिए हमने ये टेक्निक्स भी सीखनी होंगी। इतबाक का क्या मतलब है कि जबान जो है वो पूरी तरह तालु को ढांप लेती है और आवाज का रास्ता बहुत तंग कर देती है। अब देखिए क्या पढ़ा जा रहा है, तो ज़ पढ़ने के लिए उसने जबान बाहर निकाली, दांतों से बाहर निकली हुई है थोड़ी सी, और जब वो पढ़ रहा है तो हलक से आवाज सीधी निकली और ऊपर की तरफ जा रही है, और आपने देखा कि उसके पास जगह ही नहीं है उसे बाहर निकलने की, तो आवाज बहुत ही भारी आवाज सुनाई देगी, बहुत ही कम, लेकिन जगह होगी क्योंकि ये हम्स के साथ निकल जाएगा आगे आवाज, वो करके बहुत मोटी आवाज निकलेगी। इसी तरह जब आप कौफ पढ़ते हैं तो वो जैसा भारीपन नहीं है इसके अंदर, भारीपन जरूर है। अक्का, जब भी कोई सिफत मालूम करनी होगी तो हम शुरू में हमजा जबर लगा के पता करेंगे। अक्का इतना भारी नहीं है जितना वो भारी है। समझ आ गई? नहीं टीचर दोबारा समझा दे प्लीज, इतबाक नहीं समझ आया मुझे। और किस किस को समझ नहीं आया? किसी को समझ जी मुझे भी नहीं समझ आया। अगर पिक्चर को देखें और टीचर का सुने गौर से तो बहुत इजी हो रहा है ये। जी पिक्चर को गौर से देखें और फोकस करके सुने, बात फोकस करें। आप लोग आपस में बिल्कुल बात ना करें और अपने घर वालों से जरा सा दूर हो जाएं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मुझे ये 1 घंटा आप पूरा फोकस वाला देंगे तो आप इस क्लास से बहुत फायदा उठाएंगे और आपको इसमें दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं दोबारा समझाती हूँ। एक सिफत है हमारे पास इस्तिअला। इस्तिअला की सिफत क्या है कि जबान आपकी अक्सर लिसान की तरफ से उठ जाती है, बुलंद हो जाती है। इस बुलंदी को हम कहते हैं इस्तिअला। इस्तिअला का वर्ड आइन लाम वाव से निकला है, यानी कि आला, बुलंद, ऊपर, ऊंचा। तो जबान ऊंची होती है, इसी वजह से इन हुरूफ के अंदर इस्तिअला की सिफत होती है और ये बुलंद हुरूफ कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो हुरूफ बुलंद नहीं होते उन हुरूफ को मुरक्कब कहते हैं, और वो उन हुरूफ में तरकीक की सिफत पाई जाती है। और उनमें क्या होता है कि जबान क्योंकि ऊपर नहीं होती, इस्तिअला में नहीं जाती, तो वो क्या होता है, इस्तिअला से ऑपोजिट है इस्तिफाल। अभी अगर आपको ये याद नहीं होता है वर्ड तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक ये समझ लीजिए कि एक बुलंदी की तरफ आवाज जा रही है, इस्तिअला की वजह से, इस जबान की बुलंदी की वजह से आवाज भारी हो रही है, और जबान ना बुलंद होने की वजह से आवाज जो है वो बारीक निकल रही है, जैसे अक्का। अच्छा यहाँ पर आप इससे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर भी आवाज जबान बुलंद हो रही है, इसका मखरज ही यहाँ पर है, तो वो मखरज यहाँ पर लगाने के लिए जबान बुलंद दिख रही है। अगर आप इसको अब बा की तरफ देखें तो जबान जो है वो बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगी। जबान जो है ना वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी है,
सीधी यूं। तो बा बा आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जबान तालू से बिल्कुल भी टच नहीं कर रही, पूरी फ्लैट की फ्लैट पड़ी हुई है नीचे। बा बा मा ता सा जा, जो भी आप वर्ड पढ़ रहे हैं सब में जो है वो आवाज नहीं, जबान बिल्कुल फ्लैट पड़ी हुई है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं आपको ना यहाँ पर कुछ प्रेशर फील होगा, इस जगह पे अपनी जबान के इस जगह पे कुछ प्रेशर फील हो रहा है। क्यों प्रेशर फील हो रहा है? क्योंकि आवाज यहाँ से टकरा के यहाँ लग रही होगी ना, इन दोनों जगहों पे टकरा रही है, तो आवाज का प्रेशर यहाँ फील होगा आपको, यहाँ आपको गहरा गड्ढा फील होगा। इस तरह की खुद महसूस करके देखिए, पढ़ के देखिए। म्यूट नहीं की, अनम्यूट नहीं कीजिएगा, क्लास डिस्टर्ब होती है। अभी हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें। अब मैंने आपसे कहा कि कुछ हुरूफ इनमें से जो खुसा दख्तिन किस वाले हुरूफ हैं, उनमें से 4 हुरूफ हमने बाहर निकाल लिए। कौन कौन से? बहुत हाँ, अब म्यूट करें तो इसमें से एक इन्होंने ज़ौ को तो इन्होंने बता दिया कि इस तरह पढ़ेंगे। अगर आप क़ और ज़ौ और सौ इनको भी प्रैक्टिस करें तो आपको महसूस होगा कि प्रेशर आपको यहाँ हर तरफ फील हो रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पर भी फील होगा, यहाँ पर भी फील होगा, और आवाज बहुत ज्यादा भारी सुनाई देगी। तो इस वजह से ये 4 हुरूफ तफखीम के एतबार से डबल मतलब मुफखम है, डबल इनके अंदर इस्तिला मौजूद है। और वो क्या है? इस वजह से है कि एक तो इनके अंदर इस्तिला है, सॉरी डबल तफखीम है इनके अंदर, एक इस्तिला की वजह से और दूसरी इतबाक की वजह से। और ये क्या है? इस्तिला क्या है? जबान सिर्फ अक्सर लिसान की तरफ से उठती है, और इतबाक क्या है? जबान दरमियान से भी उठ जाती है। तो ये क्या होता है? पूरी तरह से तालु को ढांप लेती है। ये बात समझ आई अब? यस टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब देखते हैं एक चीज जो मुझे बतानी है। आज हम करेंगे तदबीक। आज तफहीम का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम इंशाल्लाह कल जो है वो हम करेंगे, एक मिनट में जरा ये साफ कर लेंगे स्क्रीन। कल हम हुरूफ मुशब्बा भी फेल करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं थोड़ी सी तदबीक कराना चाहती हूँ, लेकिन टाइम हमारा खत्म हो गया है। एक चीज मैं फिर भी कराना चाहती हूँ, मुझे 5 मिनट आपके ऊपर चाहिए होंगे। एक मैं आयत निकाल लूँ, 1 मिनट। माइक म्यूट कर लें प्लीज। सोनी नौरीन अपना माइक म्यूट कर लें। मुझे वो भेज दिया ना आपने स्क्रीनशॉट, किसी ने, कोई स्टाफ में से है तो प्लीज स्क्रीनशॉट भेज दें मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए पीडीएफ में मैंने निकाला है। हम ना तदबीक करना सीखेंगे। तदबीक करना क्या होता है? तदबीक करना ये होता है कि हम उस आयत के अंदर वो तमाम रूल्स जो हम पढ़ चुके हैं, उन रूल्स को इसके अंदर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे पहले मैं आपको दिखाऊं। मैंने आपको तदबीक की ऑडियोज आजकल भेज रही हूँ ना मैं बैच 4 में, वही हम यहाँ पर ट्राई करेंगे किस तरह से करती हूँ मैं। देखें ये क्या है, कोई एक स्टूडेंट मुझे वॉलंटियर चाहिए। कौन करेगा वॉलंटियर? जी अस्मा। देखिए ज़ालिका में क्या नजर आ रहा है? मिस क्या कह रही हैं आप? सॉरी, मैं कह रही हूँ आपको ज़ालिका में ज़ा में क्या नजर आ रहा है? कौन सा रूल, कोई रूल हो रहा है, कोई चीज नजर आ रही है इसके ऊपर? जी मिस इसमें एहतिजाज हो रहा है। नहीं एहतिजाज नहीं देखना आपने। खड़ी है। हाँ खड़ा जबर है। खड़ा जबर किसके कायम मुकाम होता है? मद्दा के। मद्दा कितने काउंट खींचा जाता है? 2 काउंट खींचा जाता है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जा। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे? जा जो है वो हरफ मद्दा है, 2 हरकत पर खींचा जाएगा। ठीक है,
जी बाद है लाम जेर ली। लाम जेर ली के लिए मैं क्या कहूंगी अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए कि लाम जेर ली में क्या तबाउद मुतहरिक मुतहरिक हर्फ है, बगैर इसको सिर्फ एक हरकत तक खींचेंगे। नहीं, एक हरकत बड़ी हरकत है, छोटी हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे। नहीं, झटका हम भी इसका देंगे मजबूर तरीका बताएंगे। लाम जेर ली को मजहूल नहीं करना, गाले नहीं पढ़ना। लाम जेर ली फोटो को लंबाई में खींचेंगे नीचे की तरफ। हाँ जी, अपनी थोड़ी को नीचे की तरफ करके बिल्कुल पढ़ेंगे बारीक। नीचे वाला फोटो थोड़ी को निचले जाने पर हरकत देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो करेंगे दा ली, फिर मैं कल किताबू, कल इसमें मैं क्या बोलूंगी कि लाम साकिना को क्या करेंगे हम, दालिकल मजबूर नहीं किताब। करेंगे। क्या नहीं तस्वादुम नहीं अभी मैं तसादुम तबाउत की बात नहीं कर रही। आप देखें अगर आपके कोई इनिशियल स्टूडेंट्स हैं उनको तसादुम तबाउत पता ही नहीं, तो आप तदबीर कैसे करेंगे? तो इस्लाम नाम को मजबूर नहीं करेंगे और मोटा नहीं पढ़ेंगे, जैसे अल्लाह के नाम के साथ नाम साकिन है, मजहूल कैसे होगा? हिलाएंगे नहीं इसको, इसको हिलाएंगे नहीं, साकिन हर्फ है ना। तवस्सुल करेंगे, तवस्सुल से पढ़ेंगे। शाबाश। किताबू, काफ देर की, क्या बोलेंगी इसको? आपको मजहूल नहीं करेंगे। इसमें पढ़ेंगे की पढ़ेंगे। शाबाश। फिर ता बारीकी से पढ़ेंगे। और पे मद्दा है, 2 काउंट तक खींचेंगे। पेश बू, इसके बारे में क्या कहेंगी? इसको सिंपल जस्ट होठों को मुकम्मल गोल करके पढ़ेंगे और एक हरकत पढ़ेंगे और एक हरकत खींचेंगे नहीं, जैसे ही पढ़ेंगे झटका नहीं खींचेंगे देंगे। नहीं। जो आखिरी हरकत होती है ना वो अमूमन खिंच जाती है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अली कल किताबू ला रईबा फी, ऐसे करके पढ़ते हैं, तो उनको हम कहेंगे कि खींचेंगे नहीं। ला रईबा, ला को क्या कहेंगी आप? से मद्दा है, 2 काउंट तक खींचेंगे। अलिफ मद्दा हो रहा है, इसको लंबा करके पढ़ना है। रईबा, रईबा में क्या कहेंगी आप? नरमी के साथ पढ़ेंगे। और बाकी में साकिन करेंगे तो कलकला करेंगे। 1.5 सेकंड्स के लिए पढ़ेंगे। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अपने माइक नोट कर लीजिएगा ताकि सबको सुनाई दे, और वो ये कि जिनसे ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसका रूल समझ लीजिए कि ये 3 डॉट मुआनका कहलाते हैं। ये देखिए आपके हाशिए में भी लिखा हुआ है ये मुआनका। मुआनका का मतलब ये होता है कि अगर ये इन दोनों जगहों पे वक्फ किया जा सकता है, लेकिन एट अ टाइम इन दोनों पर एक साथ वक्फ नहीं होगा। अगर आप ला रईबा पे वक्फ कर रहे हैं तो फिर आप आगे फीही पे वक्फ नहीं करेंगे, और अगर आप फीही पे वक्फ कर रहे हैं तो फिर आप ला रईबा पे वक्फ नहीं करेंगे। यानी इन 3 डॉट्स ये हमेशा दो पेयर की सूरत में आएंगे। यहाँ पर आएगा, कभी 2-3 हर्फ के बाद आ जाएगा, इस तरह से। तो और करीब आप ला रही पे जरा वक्फ करके बताइएगा। मैं अभी करके बताती हूँ। तो ये जो जब आते हैं तो इनके ऊपर एक साथ दोनों जगहों पे वक्फ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये आगे भी आएंगे आपके पास कुरान में, और इनका रूल आप लिख लीजिए कहीं पर कि इन पर एक साथ दोनों जगह पे वक्फ नहीं होगा, लेकिन हाँ एक जगह पे जरूर वक्फ करना है। ये भी नहीं कि आप दोनों ही को मिलाते हुए पढ़ते हुए चले जाएं, आपने एक जगह पे वक्फ करना है और किसी एक जगह पे करना है। उमूमन हम फी ही पे वक्फ कर रहे होते हैं, तो मैं आपको ला रईबा पे भी वक्फ करके दिखा देती हूँ। ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इस तरह से। अब ये इसकी वजह क्या है? ये इसके माना के फर्क है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, और फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। और अगर आप इसको कहते हैं ला रईबा फीही, तो आप कहते हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं है और हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ माने के फर्क की वजह से कॉमा का फर्क है। आपने इसके अभी फिलहाल हम तजवीद पढ़ रहे हैं, हम माना नहीं पढ़ रहे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मौनका में आप किसी एक जगह पे वक्फ करें। ठीक है, अच्छा आगे हम पढ़ रहे थे फी ही। जब हम तदबीक करेंगे तो फी क्या कहेंगे कि हर्फ मद्दा है और ये 2 हरकत मद्दा है, 2 काउंट तक खींचेंगे इसको। शाबाश। और हा को साकिन कर देंगे तो हा की आवाज को वाज़े